Hall, the Rani Dhyani Kumari College, West Bengal. Please, Pranjalji. A very good afternoon to each and everyone. I'm thankful to the entire organizing team and coordinator Dr. Parveen Yoshi sir of this 8-day online NEP 2020 orientation and sensitization program of UGC MMTC Aligarh Muslim University to give me the opportunity to introduce today's esteemed speaker for the second session, Professor Abdul Rahim Kidwai sir, who is presently holding the responsibility as the director of K. Nizami Center of Quranic Studies, Aligarh Muslim University. Known for the exploring new scholarly perspective in the study of Holy Quran, Professor Kidwai's prolific writing bridges the gap between the two traditions of Muslim and Western scholarship, and his conceptual analytical study renews the acquaintances of the readers with latest development in the fields of Quran studies. Words may fall short to highlight the outstanding academic and administrative accomplishments of Professor Kidwai. Sir has completed MA and MPhil degree in English from Aligarh Muslim University. He holds two PhD degrees in English. One is from Aligarh Muslim University and another from University of Leicester, UK, in the year 1993. He also holds advanced certificate in teaching of English as a foreign language from Austin University, UK. He has a special interest in the areas of study of literary Orientalism, English translation of Quran, interfaith dialogue, Islam in West and all. Professor Kidwai have enacted as a director UGC HRDC Aligarh Muslim University and also as a director of Center of Academic Leadership Education Management Aligarh Muslim University. He has served as a professor of English Aligarh Muslim University and also successfully discharged the responsibility as a registrar of Aligarh Muslim University for a period of Okay. April 2000 to May 2000. We Okay, Dr. Pranjal, you are very kind to me. I think it is much more than sufficient. I am only a student of English and I have been director of UGC HRTC, which is MMTC. That is more than sufficient. Thank you very much for your kindness and generosity and kind words. I requested Dr. Joshi also. Let's start business. That is more important, isn't it? Okay. yes. Okay, thank you very much. So, Dr. Parveen Joshi, the academic course coordinator of this short-term course on national education policy, Dr. Pranjal, and all my fellow teachers, most welcome to this session. Let me clarify. I will use a mix of English and Hindi for your convenience. तो देखिए हम आप यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि ये एकेडमिक लीडरशिप का कंसेप्ट क्या है, एकेडमिक लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है, इससे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इसका क्या रोल है. This is very important that in this highly important document of national education policy 2020, which came out after deliberations, after planning, after so much consultations. A very significant point of which all of us should be proud that this policy document by Government of India, Ministry of Education, it confers the title of academic leader on all teachers. देखिए बहुत बड़ी बात है. हम क्या समझते हैं, हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सैलरी मिलती है, काम करते हैं, घर जाते हैं. देयर इज काइंड ऑफ जॉब और प्रोफेशन. ये जो नई एजुकेशनल पॉलिसी आई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें हर टीचर को, आपका विषय कुछ भी हो, किसी भी आप कॉलेज में हो, पीजी कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो,
आप सबका एक टाइटल है। वो टाइटल क्या है? बड़ा फुल ऑफ ऑनर, मैटर ऑफ प्राइड। क्या? आपको एकेडमिक लीडर कहा गया है। अब आपको एकेडमिक लीडर डेजिग्नेट किया गया है, तो इसका अर्थ क्या है? इससे क्या चीज निकल कर आती है? हमें क्या सोचने की जरूरत है? इससे पहले मैं एक जरूरी बात और बता दूं कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है आपका, इट इज एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जोशी जी, ये जो टर्म है ओरिएंटेशन, इसके बारे में भी थोड़ा सा 1 मिनट बात सुन लें आप। ये टर्म है ज्योग्राफी की, ओरिएंट, और इसका अपोजिट है ऑक्सीडेंट, OCCIDENT। ओरिएंट का मतलब होता है पूरब, ईस्ट, जिधर से सूर्य निकलता है। ऑक्सीडेंट का मतलब है पश्चिम, वेस्ट। दूसरा जो अर्थ का हेमिस्फीयर है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट। तो ये ज्योग्राफी की ये जो मीनिंग या डेफिनेशन है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, तो उससे आपको एक मार्गदर्शन मिलता है, आपको एक डायरेक्शन मिलती है, आपको एक दिशा में ले जाया जाता है। ये होता है ओरिएंटेशन। एक दिशा है, वो क्या है, उसकी तरफ हम आप सब मिलकर चलते हैं। कोर्स कोऑर्डिनेटर साहब कोर्स लॉन्च करने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, टॉपिक्स डिसाइड करते हैं, और जो सबसे ज्यादा इमिनेंट, डिस्टिंग्विश्ड, कॉम्पिटेंट रिसोर्स पर्सन होते हैं देश भर के, उनको जमा करते हैं, उनकी गिनती करते हैं। बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि मैं डायरेक्टर रहा हूँ, मुझे पता है जोशी जी को कितनी कठिनाइयां रही होंगी। उन सबको जमा किया, उनका सुटेबिलिटी टाइम लिया, और फिर स्टेप बाय स्टेप, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, वो इवोल्यूशन होता है, वो प्रोसेस चलता है दिशा दिखाने का। तो इसमें हम किस दिशा की बात कर रहे हैं, किस चीज पे हमारा पूरा फोकस है, वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये गोल है, ये ऑब्जेक्टिव है। अब उसके कई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कई यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 3 जो है वो है एकेडमिक लीडरशिप, और मैं जो हूँ आज शाम आपसे इसी के बारे में बात करूंगा कि एकेडमिक लीडरशिप का क्या डेफिनेशन है, क्या फीचर्स हैं, क्या मीनिंग है, क्या परसेप्शन है। तो देखिए, ये बहुत ही आसान वर्ड है, एकेडमिक और लीडरशिप। एकेडमिक, एनीथिंग रिलेटेड टू नॉलेज, उसमें टीचिंग भी है, बुक्स भी है, रिसर्च भी है, डिग्रीज भी है, पेटेंट्स भी है, और सारे सेमिनार, प्रेजेंटेशंस, कॉन्फ्रेंसेस, all this is academic. The other important word is leader or leadership. That is nation building. जब हम एकेडमिक लीडर की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूजीसी, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सबकी एक ही इच्छा है कि आप सब टीचर्स
आपका, जैसे मैंने पहले कहा, आपका विषय कोई भी हो, आप सब मिलकर नेशन बिल्डिंग करें। यही लीडरशिप है। कैसे करें, उसके लिए क्या क्वालिटीज होना चाहिए, इस डॉक्यूमेंट में 5 क्वालिटीज को ब्रीफली मेंशन की गई। मैं आपके सामने बहुत ही ब्रीफली इन 5 क्वालिटीज का विवरण करूंगा, ताकि आपको एक पिक्चर क्लियर हो कि एकेडमिक लीडर कौन होता है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसका फायदा क्या है, देश उससे आगे कैसे बढ़ेगा, वो खुद आपके लिए क्यों अच्छा है। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो पहली बात तो ये है कि लीडर जब हम कहते हैं तो लीडर वही है जो इफेक्टिव हो, जो कुछ करके दिखाए, खाली बात नहीं, कर्तव्य उसके ऐसे हो कि समाज को बदल दे। चाहे हमारे महात्मा गांधी जी हो, चाहे अम्बेडकर जी हो, क्या किया इन्होंने, समाज की, देश की दिशा बदल दी। They were leaders in the true sense. इसीलिए हम महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं। We have so much respect for him. तो लीडर की पहचान ये है कि वो इफेक्टिव हो। He or she should be a man or woman of action, agenda, goal, objective। अभी जैसे मैंने कहा कि हमारा आपका एक ही आदर्श, वो है देश को आगे बढ़ाना, नेशन बिल्डिंग करना। क्लास में आते हैं, पढ़ाते हैं, पीएचडी सुपरवाइज करते हैं, किताब छापते हैं, सेमिनार में पार्टिसिपेट करते हैं, सब बहुत अच्छी बात है। कॉमन गोल क्या है, स्पिरिट क्या है, देश को कैसे मजबूत किया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, ये है हमारा काम। इस काम को करने के लिए कुछ क्वालिटीज चाहिए। कुछ थोड़ा मेरा भी एक्सपीरियंस है, 40 इयर्स से ज्यादा का और डायरेक्टर का एकेडमिक यूजीसी एचआरडीसी का, फिर इंग्लैंड में मैंने पीएचडी किया, इंग्लैंड में मैं विजिटिंग प्रोफेसर रहा। इस सब के बेसिस पर मैं कुछ थॉट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, एज टीचर्स पहली बात तो ये आप समझते हैं कि आप सब जो है वो एकेडमिक लीडर्स, विषय से कोई फर्क नहीं। एकेडमिक लीडर से तो आपके अंदर अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये 5 क्वालिटीज होना चाहिए। सबसे पहले क्वालिटी डॉक्टर जोशी क्वालिटी है कम्युनिकेशन। इसको समझिए। कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है, आपको मालूम है। एक ओरल होता है, स्पोकन होता है, स्पीच की फॉर्म में। कम्युनिकेशन का दूसरा फॉर्म रिटन है,
राइटिंग में होता है। तो चाहे कम्युनिकेशन ओरल हो या रिटन हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, भाषा की से कोई फर्क नहीं है। कम्युनिकेशन में कुछ क्वालिटीज होना चाहिए। नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू पे अटेंशन। थोड़ा ध्यान पूर्वक सुने कि आपके कम्युनिकेशन में क्या क्वालिटीज होना चाहिए। आप अपना कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। टीचर के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। डिग्रीज, बुक्स, आर्टिकल्स, कॉन्फ्रेंसेस सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी बात अगर अपने स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचा सकते, कंसेप्ट्स क्लियर नहीं कर सकते, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है, दे आर अनइम्पॉर्टेंट। स्टूडेंट को क्या चाहिए? क्लियर पिक्चर। देखिए, मैं आपसे खुद पूछता हूँ, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपको बहुत से टीचर्स इन ऑन द एवरेज 100 टीचर्स ने आपको जरूर पढ़ाया होगा। आज आपको टीचर है 5 साल से, 10 साल से, 12 साल से आप पढ़ा रहे हैं। आपको अपने कितने टीचर्स का नाम याद है? 5, 7। क्यों याद है वो लोग आपको क्यों याद है? उनके पढ़ाने का स्टाइल जो था, उनके पढ़ाने का अंदाज जो था, उनका समझाने का जो गुर था, वो ऐसा था कि आपके दिल पे, दिमाग पे जम जाता था। तो यू आर स्टिल फुल ऑफ एडमिरेशन फॉर हिम। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। या मैंने एमए इंग्लिश से किया, उससे पहले मैं बीएससी में था। तो बीएससी केमिस्ट्री मेन से मैंने किया। प्रोफेसर हरिनंदन तिवारी हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर थे। फाइनल ईयर में पेपर था। उन्होंने, ये बात है 1975, आज 2025 है, 50 साल। उन्होंने जो जिस तरह से लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ पढ़ाया, आज 50 साल हो गए, पत्थर की तरह मेरे दिल पर लिखा हुआ है। PV is equal to nRT और एंट्रोपी, एंथैल्पी। 1975 के बाद मैंने एमए इंग्लिश ज्वाइन कर लिया, पीएचडी की, इंग्लिश पढ़ाता रहा। भूल के भी कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, लेकिन उनका पढ़ाया हुआ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पत्थर की लकीर की तरह मेरे दिमाग में है। क्यों है, कैसे है, ये तिवारी जी का कमाल था। ऐसे सहज तरीके से उन्होंने कंसेप्ट क्लियर किए कि मुझे आज भी याद।
50 साल बहुत होते हैं, और जबकि मेरा उससे कोई टच नहीं है। देखिए, इस वक्त आपको भी याद आ रहा होगा, आप सब जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, आपको भी अपने तिवारी सर याद आ रहे होंगे। उनका नाम कुछ और भी कुछ और होगा जरूर, लेकिन जो पढ़ाते हो आप पढ़ लिया। टीचर सभी पढ़ाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। कौन है जो याद रह जाते हैं? जिनका, ध्यान से सुनिए, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, जो स्टूडेंट्स का मेंटल लेवल समझते हैं, जो ऐसी भाषा प्रयोग करते हैं जो स्टूडेंट की समझ में आ जाती है। मैं हार्वर्ड से पीएचडी किए हुए हूँ और ऐसी इधर उधर की बात कर रहा हूँ, ऊंची ऊंची बातें कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स ब्लैंक बैठे हैं, कोई फायदा नहीं। उनको तो फायदा उसी से है जो बात उनको समझ में आ जाए, जिससे उन्हें अपने सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, जिससे उनके कंसेप्ट क्लियर हो, जिससे उनमें आत्मविश्वास आए, कॉन्फिडेंस आए, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए। ऐसे टीचर चाहिए। तो पहली क्वालिटी है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चलिए है पहली क्वालिटी, बहुत जरूरी है। उसको हम आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, प्लीज ये 2-3 पॉइंट आप नोट करें। लेक्चर देने से पहले या बातचीत करने से पहले किसी से भी मुंह खोलने से पहले थोड़ी प्लानिंग कर, माइंड को सेट कर लें। जैसे आप अपने टीवी को ट्यूनिंग करते हैं, ऐसे ही अपने माइंड की थोड़ी सी ट्यूनिंग कर लें। सबसे पहले ये देखें कि आप कहाँ पर हैं, वेयर आर, क्या मतलब, सिचुएशन क्या है, सीन क्या है, सेटिंग क्या है, आप कहाँ पर खड़े हैं। देखिए, मैं ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो कहाँ जो मैं कह रहा हूँ या वेयर जो कह रहा हूँ, उससे मतलब है सोशली, स्टेटस वाइज आपकी पोजीशन क्या है। इस वक्त एक पोजीशन डॉक्टर जोशी जी की है, एक पोजीशन आपकी है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट, एक पोजीशन रिसोर्स पर्सन की है, एक पोजीशन आपके प्रिंसिपल और एचओडी की है। और फिर ये कम्युनिकेशन सिर्फ जॉब ही का नहीं है। जॉब तो 24 घंटे में से 5-6 घंटे जॉब करते हैं। आपकी सोशल लाइफ है, फैमिली के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं। 8 साल, 10 साल, 5 साल का आपका बेटा बेटी है, आपका स्पाउस है। फिर पब्लिक प्लेसेस में आपका कम्युनिकेशन होता है, आपके अपने साथी, कलीग्स है, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं।
हम आप जो है सोशल लाइफ गुजारने पर मजबूर हैं। We have to communicate with so many persons. Some of them are our superiors, boss, senior, senior in age, चाचा है, मामा जी हैं आपके। Some of them are equal. अभी मैंने कहा फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं। Some are subordinate to you. आपके कॉलेज में नॉन टीचिंग स्टाफ है। आप अभी टैक्सी लेके एयरपोर्ट जाएंगे, ड्राइवर हैं। बैंक जाते हैं, गैस सर्विस में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं। You come into contact with such a variety of persons. और हर आदमी से उसके ध्यान से सुने, उसके स्टेटस, उसकी पोजीशन, उसकी जो सोशल स्टैंडिंग है, उसको ध्यान में रखते हुए बात करें। अगर आपने ये सीख लिया, ये गुण सीख लिया, आई एश्योर यू विल बी ए सक्सेसफुल मैन। ऐसा नहीं है कि एक लाठी है, जबान लाठी की तरह है, एक लाठी से सबको हाथ दिया। ऐसा करेंगे तो लोग आपको गुड मैनर नहीं समझेंगे, आपकी बात ध्यान से नहीं सुने, आपको सीरियसली नहीं ले। तो हमारे बड़े बूढ़े जैसे कहते थे कि बोलने से पहले तौलो। जब भी आप कुछ बोले या लिखे, पहले सोच लें कि सामने वाला क्या है, सिचुएशन कैसी है, सेटिंग क्या है, सीन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है जो भी मैं आपसे कह रहा था, पार्टिसिपेंट कौन है, आपके सामने वाला कौन है। आपके बराबर वाला, आपका सुपीरियर, आपका जूनियर, आपसे छोटा। और जैसा वो आदमी है, जैसा वो पर्सन है, वैसे ही लैंग्वेज इस्तेमाल करें। कहीं हम आप कहते हैं, कहीं तुम कहते हैं, कहीं तू कहते हैं। आपकी जगह तू आपने बोल दिया, दैट इज बैड मैनर्स। द अदर पर्सन विल बी offended. Communication is about language and it is about social relations. ये जो सोशल हमारे समाज में जो सोशल हायरार्की है, इसको ध्यान में रखें। अगर आपने इसको ध्यान में रखा तो आपकी बात नपी तुली होगी, आपकी बात में वजन होगा, आपकी बात को सामने वाला ध्यान से सुनेगा। वरना सोचेगा पता नहीं क्या पक रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है।
कहने की तमीज नहीं, बात करनी नहीं आती, वो सुनेगी ही नहीं। तो कम्युनिकेशन में पहली बात क्या हुई, वेयर आर यू, दूसरे हु आर यू स्पीकिंग, जो सामने वाला है उसकी मेंटल फिजिकल एज क्या है, उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि उसकी मेंटल एज क्या है। अब यहीं पे देखिए बात आती है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में नीड्स एनालिसिस। क्लास शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड चेक कीजिए। जैसे हम आप जाते हैं लैब्स में, तरह तरह के टेस्ट कराते हैं, चाहे ब्लड टेस्ट हो, चाहे लीवर टेस्ट हो, चाहे किडनी टेस्ट हो, डायग्नोस नॉर्मल है कि लो है कि हाई है। ऐसे ही ये जो आपके सामने स्टूडेंट बैठे हैं 30, 40, 50, डॉक्टर हितेंद्र जी बात समझ में आ रही है? डॉक्टर हितेंद्र, जी सर, जी जी। are you with me? You are following that? ऑडियो प्रॉब्लम सर। तो ये जो अपने स्टूडेंट्स हैं, प्लीज इनका मेंटल लेवल देखिए, वो बीए के, बीएससी के, बीए के स्टूडेंट हैं, वो तो हमको पता है कि उनका लेवल क्या होना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं। आपको तो सबका ध्यान रखना है। तो उनका लेवल क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उनका नॉलेज का बेस क्या है, वैसे ही आप अपना लेक्चर दें, उनसे बात करें। अगर उनको कंसेप्ट्स क्लियर हैं, फंडामेंटल्स आते हैं उनको, बहुत अच्छी बात, डिटेल में डिस्कस करें। पता ही नहीं है, बैकग्राउंड बड़ा कमजोर है, पहले का कुछ पता ही नहीं है उनको, भूल गए या पढ़ाई नहीं, पास हो गए, लेकिन अब तो आपके स्टूडेंट है, आपकी जिम्मेदारी है उनको सेटिस्फाई करना, उनको गाइड करना, उनको सीधे रास्ते पर ले चलना। ये काम है आपका, यही एकेडमिक लीड है। वरना आए, चाक उठाई या स्मार्ट क्लासरूम अगर आपके पास है, पीपीटी किया, 45 मिनट हो गए, 50 मिनट हो गए, छुट्टी, पहली तारीख हुई, तनख्वाह मिली, घर चले गए। ये क्या है? ये मैकेनिकल और बिल्कुल कमर्शियल व्यू है, जिसको ना गवर्नमेंट चाहती है, ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाहती है, ना बच्चों के पेरेंट्स चाहते हैं, ना समाज चाहता है। समाज क्या चाहता है एजुकेशन से? कि स्टूडेंट्स की प्रॉपर ट्रेनिंग, वो समाज को कुछ दे। हमारे अपने ही बच्चे बच्चियां हैं, देश कल उन्हीं के कानों पे होगा।
उनको मोटिवेट करना, उनको गाइड करना, उनको सही मार्ग पर ले जाना, ये काम है। इसीलिए आपको एकेडमिक लीडर कहा गया है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप में कम्युनिकेशन स्किल्स हो। अभी मैं आपसे बात कर रहा था, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आती हैं? जब आपको ये पता हो कि आप कहाँ पर हैं, वेयर आर यू, हु आर यू कम्युनिकेटिंग विद, और तीसरी बात जो उतनी ही जरूरी है, आवश्यक है, वो ये है कि व्हाई आर यू स्पीकिंग टू देम, पर्पस क्या है, गोल क्या है, व्हाट डू यू वांट, व्हाई आर यू स्पीकिंग टू देम। ये तीनों बातें जितनी आपके क्लियर होंगी, वेयर, हु और व्हाई, आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा। People will have, your listeners will have respect for you. They will take you seriously. आपकी बात का उन पर असर होगा। तो क्या बात है, बहुत ही वेल डिफाइंड, क्लियर कम्युनिकेशन जिसमें कोई कंफ्यूजन न हो। बिल्कुल तीर निशाने पे लगे। हमारे बहुत से लीडर्स हैं, आप टीवी पे सुनते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि पॉलिटिकल उसमें एंगल आ जाएगा। 5 मिनट बोलते हैं और जैसे बोलते हैं आप अपना दिल दिमाग कहीं और छोड़ देते हैं। उनकी बात में ऐसा आ जाते हैं, उनकी बात ऐसी आपको दिल को छूती है, दिल को लगती है कि आप सब भूल जाते। क्यों? उन्होंने आपकी साइकोलॉजी की, आपके माइंड की स्टडी। दे नो what you want to listen. They know what you need. They know what you want. तो मेरी आपसे विनती है कि अपने स्टूडेंट से शुरू सेशन में, जैसी सेशन शुरू हो, ऐसा इंटरएक्शन करें। आप एक डॉक्टर की तरह, फिजिशियन की तरह, आपको मालूम होना चाहिए हाल सबका, कौन कितने पानी में है, किसको क्या चाहिए, और उसी हिसाब से अगर आपने उनको गाइड किया, उनको एक्सप्लेन किया, उनकी मदद की,
I can assure you they will be very good learners. They will do very well in life, and they will always remember you as their best guide. गुरु की जो हमारी रही है, परंपरा रही है, वो सही माने में आपको गुरु समझे, दिल से इज्जत करेंगे। एक तो ये है कि अब ठीक है, इत्तेफाक है, आप टीचर हैं, वो स्टूडेंट हैं, आगे आएंगे, आपको ग्रीट करेंगे, बट इट इज ए फॉर्मेलिटी। दिल से वही इज्जत होगी जब उनको लगेगा कि आपसे कुछ उनको मिल रहा है, कुछ उनको फायदा हो रहा है। वो जो 45 मिनट 50 मिनट आपके सामने बैठे हैं तो कुछ लेके जा रहे हैं। अब उनको घर जाके होमवर्क कम करना है, अब उन्हें कोचिंग में नहीं जाना है, अब उन्हें बाजार से नोट्स लेके रटना नहीं है। क्यों? आपने पहले ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो देखिए, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो you can solve the problem of your students. You can guide them. You can change them into future, bright future of our country. You can turn them into builders of modern, strong superpower India. वरना डिग्री लेके तो सभी चले जाते, आते हैं, डिग्री लेते हैं, चले जाते हैं। 40,000, 4,000 universities, 60,000 degree colleges, millions of students. कमी क्या है? क्वालिटी नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं। क्यों नहीं है? स्टूडेंट की भी कमी है, टीचर्स की भी कमी है, मैनेजमेंट की भी कमी है, गवर्नमेंट की भी कमी है, ग्रांट का भी मसला है, मैनेजमेंट का टीचर्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें भी कमी है। मगर इसमें नुकसान किसका हो रहा है? देश का। वर्ल्ड की 100, 200, 500 बेस्ट यूनिवर्सिटीज का नाम आता है, कभी कभी किसी आईआईटी या इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का नाम आ जाता है, वरना वी आर नो। इतना सा कंट्री है सिंगापुर, यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट के से भी छोटा हो। मलेशिया, मैं हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की बात नहीं कर रहा हूँ। सिंगापुर, मलेशिया, ईस्ट एशिया, जापान, चाइना, इजराइल, their universities among top 100.
They are not in Europe. They are not in America. How? Why? Because of sincerity of purpose, dedication, 100% commitment. बड़े खेत की बात है, हम में से ज्यादातर लोगों में ये नहीं। वर्किंग कंडीशंस बहुत बेहतर हो गई मेरे देखते देखते। मैंने बताया 45 ईयर्स से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। बिल्डिंग्स बड़ी शानदार हो गई, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। Quality is missing. One of the reasons is this communication. Good communication on the part of teachers, good understanding and communication on the part of students, and so on. तो प्लीज कम्युनिकेशन के बारे में आइंदा अब आप जब भी कम्युनिकेट करें थोड़ी सी प्लानिंग कर लें, सोच लें आप मुझे लेक्चर देना है या आर्टिकल देना है, आर्टिकल लिखना है, किताब लिखनी है, तो इन क्वेश्चंस का जवाब पहले खुद अपने आप को दें। क्यों कर रहे हैं आप, किसके लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। Do it. I assure you, I guarantee you, you will be a good communicator. And if you are a good communicator, you will be a successful man. कोई सामने हो, आप बेधड़क कॉन्फिडेंटली बट पोलाइटली अपनी बात कहेंगे और उसका हल निकलेगा। उसका फायदा आपको मिलेगा, आपके इंस्टीट्यूशन कॉलेज को मिलेगा। तो ये तो थी पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी जो इस डॉक्यूमेंट में है वो है एम्पैथी। नोट कर ले उसको, एम्पैथी, EMPATHY। इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड है पैथोस, इसका मतलब होता है फीलिंग्स। उसी से निकला है सिंपैथी। सेम। अनफॉर्चुनेटली शोक की बात है, आपके फ्रेंड के फादर की डेथ हो गई। वो दुखी है, आप भी दुखी हैं। ये क्या है? ये है सिंपैथी। आपने बाइक अपने कॉलेज के बाहर खड़ी की, वहां पार्किंग का कोई गेट कीपर नहीं था। 3 घंटे बाद आप निकल के आए, आपकी बाइक गायब। फाइनेंशियल लॉस, इमोशनल लॉस। You have antipathy for the bike thief. Anti, opposite, negative, hate, dislike. इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है एंटीपैथी। इस डॉक्यूमेंट में जोशी जी टीचर के लिए कहा गया है कि टीचर्स में एम्पैथी होना चाहिए। ये एम्पैथी क्या है, अभी मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं, प्लीज उससे को ध्यान से सुने। 1910 महात्मा गांधी जी अभी इंग्लैंड से लॉ पढ़कर आए।
उनके कुछ जानने वाले साउथ अफ्रीका में गुजराती बिजनेसमैन हैं, उनका केस है। उन्होंने कहा ये इंग्लैंड से पढ़ के आए, इनको बुलाए, ये हमारा केस लड़ाई। गांधी जी यंग मैन पहुंचे वहां। अब जो पहुंचे वो साउथ अफ्रीका, 1910 की बात बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल चकित रह गए। क्या देख रहे हैं, देश तो कालों का है, ब्लैक पीपल का, 99% लोग ब्लैक है और रूल कर रहे हैं उन पर 1% व्हाइट्स रूल कर रहे हैं। यही जुल्म है, अत्याचार है। उससे भी ज्यादा गांधी जी को क्या दुख पहुंचा। पार्क में सीट है, उस पे लिखा है ब्लैक्स नॉट अलाउड। ट्रेन का कंपार्टमेंट है, ब्लैक्स नॉट अलाउड। बाजार में खाने पीने की दुकान है, ब्लैक नॉट अलाउड। आप देखिए, गांधी जी इज नॉट साउथ अफ्रीकन, गांधी जी इज नॉट ब्लैक, बट ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। ये है एम्पैथी। क्या मतलब है एम्पैथी का? support or sympathy for somebody who is not your friend or who is not of your own. फ्रेंड के लिए तो सभी दुख दर्द में सब शरीक हो जाते हैं, सिंपैथी तो कॉमन है। चाहिए क्या देश को? एम्पैथी चाहिए। अभी मैं इसको एक और एक्सप्लेन करूंगा। गांधी जी की मैंने आपको एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल सुने आप। हमारे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान, उनके ग्रैंड सन थे, उनका नाम था रॉस मसूद। वो इंग्लैंड पढ़ने गए, वहां उनकी दोस्ती हुई एक वाइट इंग्लिश मैन से। इस कोर्स में अगर इंग्लिश डिपार्टमेंट के कुछ टीचर्स हैं तो वो फौरन समझ जाएंगे। उनकी दोस्ती एक वहां वाइट इंग्लिश मैन से हुई, उसका नाम था E.M. फॉस्टर। वो राइटर था, नॉवेलिस्ट था। तो रॉस मसूद से उनकी दोस्ती हो गई। जब मसूद लौट के आए अलीगढ़, यहाँ वाइस चांसलर हुए, तो उन्होंने E.M. फॉस्टर को बुलाया। ये बात बता रहा हूं मैं आपको 1921। E.M. फॉस्टर, यंग मैन, वाइट इंग्लिश मैन, इंडिया आए तो उसकी आंखें खुल गई। मीनाक्षी मैडम समझ में आ रही है आपकी? जी डॉक्टर मीनाक्षी। तो फॉस्टर जो है, इंडिया देखा उन्होंने। उस जमाने में ये चल रहा था कृष्णाष्टमी, बरसात का मौसम था, जन्माष्टमी बड़ी पसंद आई। मंदिर गए, मस्जिद गए, दिल्ली की जामे मस्जिद गए, जहां जा रहे बेहतरीन, दिल जीत लिया इंडिया ने उनका। मगर क्या देखा उन्होंने कि उन्हीं की कौम के जो लोग हैं वाइट, जो डीएम है, जो एसपी है, जो गवर्नर है, जो वायसराय है, इंडियंस के लिए जालिम, आतंकवादी। 1919 अमृतसर, जलियांवाला बाग, जनरल डायर,
opens fire and thousands of innocent Indians killed. कोई गलती नहीं उनकी, वो एक भाषण सुनने गए थे और ब्रिटिश पुलिस ने गोली चला दी. Thousands of innocent young old killed. E.M. फॉस्टर गांधी जी की तरह देखिए, वो भी बड़ा दुखी, शॉक हुआ कि ये तो जानवरों से खराब सलूक कर रहे हैं देशवासियों के साथ. जब वो लौटा, उसने एक नॉवेल लिखी, वो इंग्लिश की मशहूर नॉवेल है, उस पे फिल्म भी बनी है, टीवी पे भी आई. नॉवेल का टाइटल है ए पैसेज टू इंडिया. जो इंग्लिश डिपार्टमेंट के लोग हैं वो जानते. उसमें उसने खोल खोल के दिखा दिया कैसे ये वाइट्स इंग्लिश अत्याचार कर रहे हैं, कैसे इंडियंस को परेशान हर तरह से कर रहे हैं, लूट मार, उनको इंसानी नहीं समझ रहे. देखिए क्या है ये है एग्जाम्पल एम्पैथी. E.M. फॉस्टर इंडियन नहीं है, हिंदू नहीं है, कौन है? इज क्रिश्चियन, इज फ्रॉम इंग्लैंड. लेकिन जब उसने ट्रूथ जस्टिस का कत्ल होते हुए देखा, उसने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया. अभी मैंने गांधी जी की एग्जाम्पल दी, दूसरी E.M. फॉस्टर. आप प्लीज आप ध्यान से सुनिए. आप सब टीचर्स हैं, आपके सामने 40 स्टूडेंट बैठे हैं. हमारा देश कैसा देश है? मल्टी कल्चरल, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रीजन. आपके लिए इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वो स्टूडेंट है. हो सकता है आप बंगाली हो, वो पंजाबी हो सकता है आप नॉर्थ इंडिया के हो, वो वेस्ट इंडिया की लड़की हो सकता है आप एक धर्म के हो, वो कोई दूसरे धर्म का हो सकता है आपकी कास्ट कास्ट कुछ हो, उसकी कास्ट कुछ और. टीचर जो है, ही शुड बी full of empathy. For him, every student is same and equal. जो आपके गुरु की हमारी परंपरा रही है, वो ये नहीं देखते कि वो कौन है. देखने की बात ये है कि उसको गुरु दक्षिणा दी जाए, उसको मदद की जाए. ये नहीं कि पैसे उसको बांटने लगे, उसको गाइड करें, उसको मोटिवेट करें. क्लास में तो आप पढ़ाएंगे ही, पढ़ाते ही हैं, कहने की बात ही नहीं. लेकिन आपको दिख रहा है एक लड़का है या एक लड़की है, वो अलग थलग चुपचाप रहती है या क्लास में 15 दिन से नहीं आई. अब ये आपका धर्म है, ये आपका कर्तव्य है कि अलग से उससे पूछिए भाई क्या क्या. फैमिली की बात हो सकती है, पर्सनल कोई हो सकती है बात,
हेल्थ इश्यू हो सकता है। तो जोशी जी, टीचर जो है, ये टीचर सिर्फ वॉक टॉक और चौक वाला टीचर नहीं है कि आया, वॉक क्लास में वॉक इन किया, चौक उठाई या स्मार्टफोन का बटन दबाया और टॉक लेक्चर दिया और चल दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री, यूजीसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हमारे सब टीचर जो हैं वो मेंटोर्स बने, MENTORS, शुभ इच्छा, शुभकामनाएं आपकी अपने स्टूडेंट्स के लिए। पढ़ाएं तो कहने की बात ही नहीं है, उनका ध्यान भी रखें, उनकी साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है, यंग एज बड़ी खतरनाक होती है। 16 से 21-22 साल की उम्र में हर तरह के टेम्पटेशंस होते हैं, प्रेशर्स होते हैं। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है उन पर नजर रखें। जाहिर है हम आप थानेदार तो नहीं है कि डंडा लेके उनको सीधे ही कर दें, लेकिन उनके बुरे भले की फिक्र करें। ये है एम्पैथी, ये क्वालिटी। और इसमें जैसे भी मैंने कहा, आपके अंदर एम्पैथी होना हर एक के लिए। मुझे मालूम है आप लोग यहाँ के कोटद्वार के हैं, आपके रीजन में, अपने रीजन के ज्यादातर स्टूडेंट्स आते होंगे, और जगह जो है और रीजन के भी आते हैं, और लैंग्वेज के भी आते हैं, और कल्चर के भी आते हैं। सबके साथ प्यार भरा व्यवहार, एक फैमिली की तरह सबका भला। जैसे फैमिली में कोई कमजोर होता है, किसी को थोड़ी मदद की जरूरत होती है, ये विचारधारा होना चाहिए। तीसरी क्वालिटी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है, वो उसको कहा गया है ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है रेजोल्यूशन, पक्का इरादा, पहाड़ की तरह जमे हुए, कोई हिला ना पाए। ये जो आपने नेशन बिल्डिंग का, क्वालिटी एजुकेशन का, अपने इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने का जो आपने शपथ लिया है, ग्रेट, जम के खड़े हो गए, सौरभ गंगोली की तरह विकेट पे कोई हिला नहीं सकता। सचिन तेंदुलकर है, 200 रन के बाद ही वो विकेट से हटेगा। ये एटीट्यूड जो होता है, ये होता है ग्रेट। चौथी क्वालिटी है फोकस, ध्यान रखना। आपका ये जो रोल है, लीडर वाला, मेंटर वाला, शुभ चिंतक वाला, आगे बढ़ने का, बिल्कुल सोल्जर्स की तरह, हमारे प्राउड आर्मी मैन की तरह आगे बढ़ते रहना। रास्ते में जितनी भी परेशानियां आए, खाई आए, पर्वत आए, नदी आए, उसको तो आगे बढ़ना है, उसको तो मोर्चे पर पहुंचना है। ये क्वालिटी आप में आ जाए तो देश का भला होगा। एकेडमिक लीडर से यही आशा की जाती है। लास्ट में बात है, आप थोड़ी फिक्र
अपने कॉलेज के डेवलपमेंट की, अपने इंस्टीट्यूशन की, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ भी है उसकी रैंकिंग की, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके फाइनेंस, उसके गुडविल की, उसके अच्छे नाम की, उसकी नेम एंड फेम की फिक्र करें। ये खाली प्रिंसिपल का काम नहीं, या पब्लिक रिलेशन का जो आपका इंचार्ज है उसका काम नहीं है कि वो कॉलेज के बारे में प्रेस रिलीज दे। सब मिलजुल कर टीम की तरह, आपको पता है रोज आजकल रैंकिंग का आता रहता है। कभी इंडिया टुडे की तरफ से रैंकिंग हो रही है, कभी टाइम्स की तरफ से हो रही है, कभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की NIRF की रैंकिंग हो रही है। तो वो रैंकिंग जो है वो तो पूरे इंस्टीट्यूशन की होती है, हर चीज की होती है। खेल का सामान आपके कैसा है, बिल्डिंग कैसी है, लैब की क्या पोजीशन है, कंप्यूटर लैब कैसे काम कर रही है, लाइब्रेरी का क्या हाल है। तो फिक्र करना, जैसे घर में आपको फिक्र होती है हर चीज की, गैस की, बिजली की, राशन की, सफाई की, चाहे आप हो, चाहे आपकी माता जी हो, चाहे आपकी वाइफ हो, सब मिलजुल के काम करते हैं तभी सुखी परिवार है। तो वही सुखी परिवार वाला आइडिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दिस इज द नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी आइडिया अबाउट यू। लास्ट में अब मैं बहुत ही ब्रीफली दो चैलेंज बता दूं। ये तो था आपका रोल, आपको क्या करना है, कैसे करना है। अब दो चैलेंजेस आ रहे हैं आपके सामने, और इसमें अगेन देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज एक है, कल हो सकता है दूसरी हो, 10 साल बाद कोई दूसरी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कोई भी गवर्नमेंट एजुकेशन को ग्रांट नहीं दे, आपको अपने फंड खुद जनरेट करना है। फीस बढ़ाइए, लड़का फीस कहाँ से लाएगा, बैंक से लोन लेगा, जब जॉब मिल जाएगा बैंक को लोन वापस करेगा, ताकि पेरेंट पर कोई बोझ न पड़े। फीस जो आए आपकी उससे आप सैलरी दीजिए, उससे अपना इंस्टीट्यूशन चलाइए। कोई भी गवर्नमेंट जो है या ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज की ग्रांट नहीं दी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपके लिए एक अलार्म बेल है, वार्निंग सिग्नल है। सुन ले, समझ ले, तैयारी कर ले उसकी कि अभी तक तो चैन है, चैन की बांसुरी बजा रहे हैं, पहली तारीख को बैंक से सैलरी आ जाती है। आपकी पॉलिसी बन रही है वो ये कि अपना इंस्टीट्यूशन खुद चलाए। दूसरा चैलेंज जोशी जी वो थोड़ा दुखदायक है। वो चैलेंज है, ध्यान से सुनिएगा, अनएम्प्लॉयबिलिटी। मैंने अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहा, अनएम्प्लॉयमेंट तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन जो असल प्रॉब्लम है वो ये कि हमारे स्टूडेंट ऐसे नहीं है कि उनको कोई नौकरी मिल सके। MBA है, दो जुमले इंग्लिश में हिंदी में बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, इमेजिनेशन नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, एनालिसिस की एबिलिटी नहीं,
उनका चाचा भी सिलेक्शन बोर्ड में बैठा होगा, उनको नहीं रखते। क्यों? उसको तो काम चाहिए। काम वाले स्टूडेंट, वो बड़ा दुख की बात है, नहीं। 10%, 20%। डिग्री वाले तो आपको लाखों मिल जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम सब जगह है। आर्मी में भी ये प्रॉब्लम है, सिविल सर्विस में भी प्रॉब्लम है, प्राइवेट सेक्टर में भी है प्रॉब्लम। जॉब्स है, पोजीशंस मौजूद है, जोशी जी, सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता जी। मैं जब था बोर्ड ऑफिस में, यूजीसी की मीटिंग होती थी, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग होते थे, वो कहते थे मंत्री जी से, एजुकेशन मंत्री से, आप हमको ग्रेजुएट्स कीजिए, सूटेबल ग्रेजुएट्स कीजिए। वो वाइस चांसलर से कहते थे, वाइस चांसलर टीचर से कहते थे। प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम। Engineers and they don't know any skills. MBA है, they cannot do any business. डॉक्टर्स को तो अभी इतना बुरा हाल नहीं हुआ, और ये इनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये बीएससी वालों। हम क्या कर रहे हैं, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, हर साल लाखों स्टूडेंट्स को निकाल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उसकी चिंताजनक बात यह है कि जो लाखों निकल रहे हैं, इसमें काम के कम है, नाम के ज्यादा है, भर्ती के। ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली में बैठ के, मुझे तो खुद ही डर लगती है कि मेरे को पता नहीं शिक्षा मंत्री सॉल्व नहीं कर सकते। पेशेंस नहीं है, जरा भी नहीं ये है। प्रॉब्लम खाली वाइस चांसलर भी सॉल्व नहीं कर सकते। पसंद में इतनी थकान हो गई। Please switch off your mic. Dr. Sushma, switch off your mic. सुषमा मैडम, सुषमा Yes. मैडम, प्लीज स्विच ऑफ योर No. माइक। Okay, it's all right. तो ये देखिए प्रॉब्लम जो है, ये हमारी सबकी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो स्टूडेंट भी थोड़े से उसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, लेकिन ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो मेरी है, आपकी है। आपके पास कई घंटे रोज गुजारता है, साल भर रहता है। हम आप उसको नहीं सुधार पाएंगे तो कौन सुधारेगा? हम आप उसको स्किल्स नहीं देंगे तो उसके पास स्किल कहाँ से आएगी? आसमान से तो नहीं आएगी। तो प्लीज टेक दिस टीचिंग एज अ मिशन, जैसे हमारे साधु संत करते थे। एक उन्होंने नेक काम तपस्या कर, उसमें तपस्या कर रहे हैं। टीचर का काम भी तपस्या का है, स्टूडेंट्स को सीधे रास्ते पे लाने का है, अपने कॉलेज को टॉप पे ले जाने का है। और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? मैंने पहले कहा, यही रास्ता है नेशन बिल्डिंग का। नेशन जो है वो स्कूल्स और कॉलेजेस में बनती है, फैक्ट्री में नहीं बनती।
माँ की गोद से कुछ मिलता है और बाकी जो है वो गुरु के सामने बैठ के। आप गुरु हैं, बहुत उम्दा, आपको एक अवसर मिला है भगवान की तरफ से। इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, भला करें, अपना भी, अपने स्टूडेंट्स का भी, देश का भी, सब आप पे गौरव करेंगे। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक एंड नाउ लास्ट 5 minutes are here. Any question, any query, any clarification, please feel free to ask. Is there any question from anybody? Please. Good evening, sir. जी बताएं। Myself Dr. Anurag Sharma from Government Degree College, Karnugati, Kurdwar. Okay, most हाँ welcome. सर, हाँ थैंक यू सर। एक्चुअल में आपका लेक्चर वैल्यूज से पूरा भरा हुआ था और हमें लगता है कि आज शायद वैल्यूज की ही कमी कुछ ज्यादा होती चली जा रही है। सही बात। तो उन वैल्यूज को नए बच्चों में डेवलप कैसे किया जाए, वो एक बड़ी परेशानी आज के समय की है। तो थोड़ा सा अगर आप मार्गदर्शन करें सर। नहीं, आप यू आर एब्सोल्युटली राइट। और देखिए, ये वैल्यूज वाली बात है, मैंने अभी भी लास्ट में जुमला कहा, ये तो प्रोसेस माँ की गोद से शुरू होता है जी। माँ की गोद से, घर के आंगन से, पड़ोस में क्या हो रहा है, और फिर स्कूल और कॉलेज का भी होता है। तो ये तो है सबकी मिली जुली जिम्मेदारी है। पहले जो हमारी वो सारे संस्कार थे, जो लाइफ स्टाइल था, उसमें सबका अपना अपना रोल होता था। बड़ा उम्दा रोल दादा दादी का होता था। दादा दादी तो चलिए खून का रिश्ता है, पड़ोसी जो करते थे, चाहे उनका जो भी धर्म हो, जो भी उनका वो हो, वो जो काम करते थे, वो जिस तरह से वैल्यूज सिखाते थे, वो तो किसी कीमत पे नहीं मिलती। अब लाइफ स्टाइल बदल गया है, मी एंड माई लाइफ, ये यूपीएस फ्रेंडली, लेकिन करना तो है, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। We all have to think about it and do something. वरना देखते हैं आप कैसी कैसी खबरें आती हैं टीवी पे, इंटरनेट पे, तो पढ़ के दुख भी होता है, शर्म भी आती है कि हम अपने हाथों कर रहे हैं, कोई बाहर से नहीं कर रहा जी। ओके, चले जोशी जी, बहुत ओके सर, थैंक यू। आपका आभारी हूँ। Thank you, sir. Vote of thanks I invite to Pranjal from Bengal. Sir, please. Okay. Once again, good evening, sir. Throughout the session, sir, you have identified this topic so simple way with your eyes of vision, your experience, eyes of wisdom, rather. You have identified so simply that being a academic leader, being a teacher, we need to be much communicative with the topic we are going to present in front of our student beyond all the academic degrees we hold. You have emphasized upon the public relations, the challenges of any employment, unemployment, etc., and give suggestion to note down on the imagination, critical thinking, analytical abilities, and all. Throughout the session, the takeaways of the session will definitely incorporate in our academics and our lives. Once again, I'm thanking on behalf of the MMTC, Aligarh Muslim University,
to share all your views, and in spite of your busy schedule, you have shared all the thoughts so simple manner. Once again, I'm thanking all the participants and the organizing team for joining with us. Thank you so much, sir. Thank Thank you so you. much, sir. Thank Thank You you, are sir. very, very gracious. Very gracious. Thank you, sir. Okay, great. Thank you. Thank you to all. Thank you. See you tomorrow. Thank you, sir. Thank you. Great. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot, sir. Thank you, sir.